students, today we will discuss CBSE revised syllabus for session 2020-21 क्लास 11 फिजिक्स। आज हम ओनली थ्योरी जो है उसका सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इस सेशन में क्या कुछ पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर जो है उसका पैटर्न किस टाइप का रहेगा। फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 042। The physics syllabus is divided into two parts, theory and practical. Theory 70 marks exam and time duration of exam 3 hours, and practical 30 marks, time duration 3 hours, and total 100 marks theory plus practical. The question paper divided into 4 sections. In section A, 1 marks questions, number of questions 20, carry 20 marks. Section B, 2 marks questions, 7 questions, carry 14 marks. 3 mark questions, total number of questions of 3 marks, 7 questions, carry 21 marks. 5 mark questions, 3 questions, carry 15 marks. Total question paper including 37 questions carry 70 marks. There is no overall choice in the paper. पेपर में overall choice नहीं है, but however there will be at least 33% internal choices. बट इसके अंदर क्या है, 33% जो है वो क्या रहेंगी, इंटरनल चॉइसेस रहेंगी, जिसमें से कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन में होंगी, कुछ 2 मार्क्स में रहेगी, कुछ 3 मार्क्स में रहेगी, और 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं तीनों, उन तीनों के अंदर क्या रहेगी, आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी। बट क्वेश्चन पेपर जो है उसके अंदर ओवरऑल जो है वो इंटरनल चॉइस नहीं होगी। द एंटायर सिलेबस डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। Unit first, physical world and measurement, including 2 chapters. First is physical world and second chapter units and measurements. ये जो चैप्टर नंबर हैं ये NCERT बुक्स के हैं। सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। ये 2 चैप्टर जो है ये सेकेंड यूनिट में इंक्लूड हैं। थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन, ओनली सिंगल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। दीज 3 यूनिट्स कैरी 23 मार्क्स। फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं वो 23 मार्क्स की रहेंगी। इनमें सेपरेट जो है वो किसी भी यूनिट के लिए मार्क्स डिसाइड नहीं है, कंबाइंडली ये 23 मार्क्स की हैं। फोर्थ यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर इंक्लूड्स ओनली 1 चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। Unit 5 motion of system of particles and rigid body, only single chapter system of particles and rotational motion. Sixth unit gravitation includes only single chapter gravitation. Unit number 4, 5 and 6 ये 3 units जो हैं ये क्या हैं, टोटल 17 मार्क्स की हैं। नेक्स्ट यूनिट 7 properties of bulk matter. It includes 3 chapters. First is mechanical properties of solids, second is mechanical properties of fluids, and third is thermal properties of matter. इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 8 thermodynamics includes only single chapter thermodynamics. Unit 9 behavior of perfect gases and kinetic theory of gases includes only single chapter kinetic theory. Unit 7, 8 and 9 carry 20 marks combinedly. Last unit, Unit 10 oscillations and waves includes 2 chapters. First is oscillations and second is waves. And last 10th unit carry 10 marks. Total 70 marks.
नाउ वी डिस्कस द यूनिट्स एंड चैप्टर्स इन डिटेल। हम अब इसमें देखेंगे कि आपको किस चैप्टर में क्या जो है वो स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इन विच चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, इन विच यू हैव टू स्टडी फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, टू बी डिस्कस्ड एज ए पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स। इसके अंदर क्या है कि आपको फिजिक्स का जो है इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करना है, जिसके अंदर फिजिक्स के स्कोप एंड एक्साइटमेंट रहेंगे। उसके अंदर कुछ नेचुरल लॉज हैं, जिसके अंदर हम कुछ फोर्सेज जो हैं नेचुरल फोर्सेज स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो स्टडी करेंगे, और फिजिक्स जो है उसका अदर टेक्नोलॉजी और सोसाइटी जो है उसके साथ रिलेशन जो है वो हम क्या करते हैं इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इन दिस चैप्टर we will discuss need for measurement, units of measurement, system of unit systems, MKS, CGS, FPS and SI system. SI units, fundamental and derived units in SI system, length, mass and time measurements, accuracy and precision of measuring instruments, error in measurement, significant figures. It also includes dimensions of physical quantities. Physical quantities जो है उनकी dimensions हमें क्या करनी है इसमें स्टडी करनी है। Dimensional analysis and its applications, और ये जो dimensions हैं इनकी applications जो है हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स। चैप्टर थर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। तो ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं मोशन एंड रेस्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इन विच ग्राफिकल ट्रीटमेंट जो है ओनली वही स्टडी करना है हमें। इसके अंदर कैलकुलस मेथड जो है उसको डिस्कस नहीं करना। इसमें से मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो क्या है आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, बट वहाँ पे हम क्या करते हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, विच इंक्लूड्स स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जो आपने अभी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की ओनली डेफिनेशंस देखी थी, यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशन, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, resolution of vectors in plane, rectangular components, scalar and vector product of vectors। तो अब इसके अंदर हम जो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज जो है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या है उसमें डायरेक्शन होती है, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम इसमें क्या करेंगे डिटेल से करेंगे। मोशन इन ए प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो हम मोशन इन प्लेन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड लॉज ऑफ मोशन, विच इंक्लूड्स चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, impulse, Newton's third law of motion, law of conservation of linear momentum and its applications। ये इतने टॉपिक ऐसे हैं जो हम क्लास 9 जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम थोड़ा सा क्या देखेंगे डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में आपके लिए जो न्यू कंसेप्ट्स हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ
co-current forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, lubrication, and after that dynamics of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसका डायनामिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच वी विल स्टडी व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। जो सर्कुलर पाथ जो है उस पर जो व्हीकल मोशन करता है उसकी शेप स्पीड जो है वो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। Chapter 6 Work Energy and Power, which includes work done by a constant force and a variable force। इसके अंदर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स दोनों से। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, उनका सम जो है मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसका कंजर्वेशन हमने इसमें स्टडी करना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, हमने पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो मोशन की थी सर्कुलर मोशन, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। ये हमने क्या करना है, वर्टिकल सर्किल जो है उसके अंदर सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन, हमें कॉलिजन स्टडी करना है जिसके अंदर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन दोनों इंक्लूड्स हैं, और उसमें भी हम क्या करेंगे, 1 and 2 डायमेंशनल दोनों जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, विच includes only single chapter, system of particles and rotational motion, having center of mass of two particle system, momentum, कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास। इसमें हमने मोमेंटम कंजर्वेशन स्टडी करना है, एंगुलर मोमेंटम का, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। ये हमने इसके अंदर डेरिवेशंस देखने हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स दैट इज नॉन एज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्वेशन, उस लॉ को स्टडी करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करते हैं, किसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। यहाँ हम रोटेशनल मोशन जो है उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल और लीनियर मोशन जो है उनको कंपेयर करेंगे। देन वी विल डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उनके वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डेरिवेशन जो है वो इंक्लूड्स नहीं है। इसके अंदर हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे तथा उनकी एप्लीकेशंस इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट ग्रेविटेशन, विच इंक्लूड्स ओनली सिंगल चैप्टर ग्रेविटेशन, हैविंग टॉपिक्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टेटमेंट आप क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने ओनली वहाँ डेफिनेशन डिस्कस किया था। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे और उसका वेरिएशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये टॉपिक्स जो हैं ये हम क्या करेंगे, इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। यूनिट 7 जो है इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, एक सॉलिड्स का है, फिर क्या है लिक्विड्स का है और फिर क्या है गैसेस का है। तो फर्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, विच इंक्लूड्स स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इस सेशन में रिमूव किए गए हैं, बट हमें अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद ही हम
स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ जो है उसको स्टडी कर पाएंगे। इसलिए जो टॉपिक्स इसमें रिमूव हुए हैं वो टॉपिक्स हमें क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप प्रीवियस किसी क्लास में भी स्टडी नहीं करके आए हैं, वो आपको क्या है यहीं पे स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए वो टॉपिक्स जो हैं रिमूव तो हो गए हैं, बट हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस सिलेबस में। नेक्स्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स विच इंक्लूड्स प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर दो एप्लीकेशन हमारे पास हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम and its application. Bernoulli's theorem and its application, it is very important topic in this chapter. इसके अंदर हमने सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन स्टडी करना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्टडी करना है, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, अगर सरफेस कर्व्ड है तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, उसको स्टडी करना है, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज ऑफ ड्रॉप्स, bubbles and capillary lights. Next chapter, thermal properties of matter, which includes heat, temperature, thermal expansion, thermal expansions of solids, liquids and gases, तीनों स्टेट का thermal expansion स्टडी करना है, anomalous behavior of water, specific heats capacity, CP, CV, CP specific heat at constant pressure, CV specific heat at constant volume, calorimetry, change of states, latent heat capacity, heat transfer, उसके अंदर 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये हमें डिस्कस करने हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज़ ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी जो है उसका हम थोड़ा सा आइडिया जो है उसको डिस्कस करेंगे, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनको हम थोड़ा ब्रीफली जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स विच इंक्लूड्स चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स, हैविंग टॉपिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जो कहाँ से आएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आएगा, देन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, isothermal and adiabatic process, and finally in this chapter we will discuss second law of thermodynamics, reversible and irreversible process. Next unit 9, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases, which includes chapter kinetic theory, having topics equations of state of perfect gas, परफेक्ट गैस जो है उसकी स्टेट ऑफ इक्वेशंस हमने डिस्कस करनी है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें क्या होंगे, एजम्पशंस होंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स प्रेशर जो है उसको टेम्परेचर की टर्म्स में, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसमें हमने ओनली स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, and applications of specific heat capacity of gases, concept of mean free path and Avogadro number, ये टॉपिक्स जो हम काइनेटिक थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट 10th यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इट इंक्लूड्स 2 चैप्टर्स, फर्स्ट इज ऑसिलेशंस in which periodic motion, time period, frequency, displacement as a function of time and periodic function, ये डिस्कस करेंगे हम पीरियोडिक मोशन में। उसके बाद हम इसमें देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एंड इट्स इक्वेशंस, जिसमें फेज डेफिनेशन आएगी, ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग वो हम डिस्कस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट इसको स्टडी करेंगे, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है SHM में उसको डिस्कस करेंगे, सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम जो है उसके टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे,
फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो है उसका ओनली क्वालिटेटिव मीन्स ओनली डेफिनेशंस जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल एंड रेजोनेंस। लास्ट चैप्टर वेव्स, in which we will discuss transverse and longitudinal waves। इसमें आप क्लास 9th में ओनली डेफिनेशंस जो है स्टडी करके आए हैं उसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव जो है उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स जो है उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स जो है उसके लिए, और स्ट्रिंग जो है उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स जो है उसमें फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, उसको डिस्कस करना है। एंड फाइनली वी विल डिस्कस बीट्स इन दिस चैप्टर। बीट्स जो है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये है क्लास 11th का सिलेबस थ्योरी का। प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।